Getting into IIMs after class 12th is everyone's dream. In fact, getting to top colleges is everyone's dream after class 12th. हम सब सोचते हैं कि किसी न किसी लेवल पे हमको उन कॉलेज के प्रेमिस में जाके पढ़ने का मौका मिले. So today we have with us the superstar of Gwalior who happened to made it to amazing colleges, be it IIM Shillong, SRCC, Shahid Sukhdev Singh College of Business Studies. We are talking about Ayush Agicha. So now we'll get it from horse's mouth कि इस कॉलेज की एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे होती है, चैलेंजेस क्या फेस करने को मिलता है. बिकॉज देखो पढ़ाई तो अपनी जगह है, लेकिन आई एम श्योर हर बच्चे को चैलेंज भी फेस करना पड़ता है. बोर्ड एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम का मैप कैसा करना पड़ता है, स्ट्रेस लेवल्स क्या ऊपर नीचे होते हैं, इसके अलावा कहाँ कहाँ दिमाग सटकता है, व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू. सो दिस इज व्हाट वी लिसन फ्रॉम हॉर्सेस माउथ. Ayush, welcome. Thank you so much, sir. So Ayush, now we wanted to understand that how did the entire preparation go? Now, before that, I wanted to ask that what are the colleges you actually got through, so that let our audience know that what are the colleges you made it through. So I made it through IIM Shillong IPM program. I also got into Shahid Sukhdev College of Business Studies, BMS, and also Shri Ram College of Commerce for their Eco Honors program. So practically all the dream colleges which people think about, Ayush made it. So Ayush, अब अपन बात करेंगे preparation की. From what exact date? I'm talking about date means किस month में आपने preparation start किया? Did you start in grade 12th or 11th or in 10th? Because I think people prepare at different levels. When did you start it? So I got to know about IPM after my class 10th board examinations. I got to know it through Manoj sir, and that was when I decided to pursue IPM program, and I started it, I guess, in the month of August during my 11th, and I started building my basics from that, and it was an entire 2 years journey. Okay. Yes. सबसे बड़ा जो सवाल है मेरे ख्याल से बच्चों को मन में आता है कि आज भी काफ़ी टीचर्स बोलते हैं पहले 11th पढ़ लो, 12th पढ़ लो, देन गेट इनटू एंट्रेंस एग्जाम, बैलेंस नहीं कर पाओगे. सो व्हाट इज सम बैलेंसिंग इशू विद बोर्ड्स एंड एंट्रेंस एग्जाम? So since I started from class 11th itself, I did not have much pressure on me to manage boards and also entrance exams. I did build up my foundation during my 11th class and then build it up on that during my 12th, and there were some management issues when boards were near. So I subsided my IPMAT preparation during that time and focused more on boards. Okay, so now in brief, tell us about your entire preparation journey. Start कैसे करी, कैसे कैसे किताबें पढ़ी, mocks कब लगाना चालू किए. If people want to understand from where people start and where it ended, तो आप उसको उस journey को कैसे summarize करना पसंद करोगे? So during my initial stages of preparation, I focused on building my basics, be it mental maths, arithmetic. All these are foundations to your preparation, which are fundamental. You cannot miss out on those to further go ahead in your preparation. Also, one advice that I would give: if you're starting your preparation, gauge your current aptitude level. Where do you stand currently, so that you can plan out your preparation. One thing to gauge that would be giving PYQs as a mock, so that you can know how is your current aptitude level and build up on that. So I started with basic level books to build up my aptitude, and I started practicing a lot. Daily I would practice 2 or 3 hours, because aptitude is like a muscle. You have to train it daily and consistently. So this journey of practicing, giving mocks, continued for the entire 2 years, reading newspapers, and yes, it was a great journey with many ups and lows. तो what lows I would like to know, because I think बच्चों की लाइफ में lows ज़्यादा आते हैं, ups तो कम ही आते हैं. Lows, I would say, were obviously my mock scores. कभी 230 उससे ऊपर चले जाते थे, फिर लगता था कि ऑल इंडिया रैंक 1 तो मैं ही हूँ. फिर जब नीचे चले जाते थे तो फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ देख रहा होता था. तो हाईज एंड लोज काफ़ी मॉक स्कोर्स में आते हैं, बट वन थिंग कि आपको एटीट्यूड सही रखना है. मॉक स्कोर्स के पर्सपेक्टिव में आपको उसको लर्निंग ओरिएंटेशन से देखना है कि मैं इस मॉक से सीख क्या रहा हूँ. आपको ये नहीं देखना है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन नहीं रखना है कि आपने ऐसा परफॉर्म किया, मैं ऐसा हूँ. यू डिराइव लर्निंग्स फ्रॉम दैट मॉक, कीप अ नोटबुक, सी वाई आर यू परफॉर्मिंग, ऐसा क्या गलत गया, क्या सही गया. दैट इज़ अ बेटर अप्रोच टूवर्ड्स मॉक्स, बिकॉज मॉक्स आर इसेंशली और एक तरीके का एग्जाम ही होता है, तो उससे आप जितना सीख सकते हो उतना अच्छा होता है. I've seen a lot of students getting scared from mock, बहुत सारे बच्चे mock लगाते ही नहीं हैं. वो सोचते हैं कि हमारा कोर्स पूरा हो जाता है, हम we'll appear for mock. So how incorrect
दिस इज आई एम श्योर इनकरेक्ट तो है ही, हाँ। तो किस डिग्री के इनकरेक्ट आप उसको दिस बोलोगे? इज अ फंडामेंटली रॉन्ग अप्रोच। अब ये आपको देखना है कि बोर्ड्स के एग्जाम जैसा नहीं है, एक हमारा सिलेबस खत्म हो गया फिर हम टेस्ट दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द नेचर ऑफ दीज एग्जाम्स इज़ वेरी डिफरेंट। दीज आर एप्टीट्यूड एग्जाम्स, इनका कोई सेट सिलेबस होता नहीं है। दे कीप ऑन इवॉल्विंग, सिलेबस इवॉल्व होता रहता है, एंड ओनली थ्रू दिस मॉक्स कैन यू एक्सपीरियंस कि तुम्हें प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो जब तक यू डोंट गिव दिस मॉक्स तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हें प्रिपेयर कैसे करना है। तो वंस यू गेट दिस फाउंडेशनल एलिमेंट्स इन यू जो बेसिक्स होते हैं, उसके बाद यू कैन स्टार्ट गिविंग मॉक्स। और हफ्ते का संडे संडे को एक एक दे दो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस में, दैट इज इनफ। अच्छा आयुष, एक बात बताओ दैट व्हाट आर द फंडामेंटल मिस्टेक्स यू रियली फील स्टूडेंट्स आर डूइंग? अगर तीन कहते हैं कि भयानक लेवल पे गलती जो बच्चे को करनी नहीं चाहिए और तुम बच्चे लोग ज्यादातर करते हो, तो एज एज अ जेन जी व्हिच यू नो प्रिपेयरिंग फॉर मॉक, वो तीन गलतियां कौन सी हैं? फर्स्ट वुड बी कि लोग बहुत ज़्यादा मटेरियल पे फोकस करते हैं, इधर उधर के मटेरियल्स उठा लेंगे, बहुत सारी बुक्स कलेक्ट कर लेंगे, और फिर एट द एंड ऑफ द डे वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। इससे अच्छा ये होगा यू फोकस ऑन वन मटेरियल और उसको कंसिस्टेंटली और अच्छे से करो, ज़्यादा मटेरियल्स पे फोकस नहीं करो। सेकेंड वुड बी, एज सर मेंशन, वो मॉक से बहुत डरते हैं, मॉक ज़्यादा देते नहीं हैं। मॉक्स की फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी जैसे आप उसको एनालाइज कर रहे हो, वो थर्ड पॉइंट यही कि एनालाइज अच्छे से नहीं करते हैं मॉक्स। मॉक्स दे दिए, स्कोर देखा, रैंक देखी, बंद कर दिया, विच इज़ वेरी रॉन्ग। यू हैव टू, अगर आप 2 घंटे का मॉक दे रहे हो तो उसको 4-6 घंटे एनालाइज करने में दो कि आपकी क्या क्या अप्रोच थी। एक क्वेश्चन अगर गलत गया है तो उसको फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग से देखो क्यों गलत गया। आस्क वाई, अगर ये मैंने क्वेश्चन रॉन्ग किया था तो वाई डिड आई चूज द रॉन्ग ऑप्शन। वो ट्रेन ऑफ थॉट तुम्हारी क्या गलत थी जिससे तुम्हारा क्वेश्चन गलत गया, उसको पूरा क्रैक करो रूट लेवल तक So, एनालिसिस में। so Ash, now we understood about mock, right? We understood about the prep. In fact, the mistakes which people do. So let's go section by section. How did you, work for English section? How did you work for quantitative aptitude section? तो अपन एक एक section wise बात करते हैं ताकि student get to know exactly how this section wise preparation go. So let's start with quantitative aptitude, maths. So maths का how you recommend people to start, because you scored amazing in I think one. You also scored 99 plus percentile in CUET, in fact, right? So just let us know that how the entire quantitative aptitude journey should go. Sure. So quantitative ability is highly dependent on how much you practice and how much you build that muscle of cracking solutions. So एग्जाम में जाके यू कैन नॉट जस्ट ऐसे तुम्हारा लॉजिक इतना बिल्ड नहीं हो पाएगा, तो यू हैव टू डू दैट प्रिपरेशन पहले। यू हैव टू कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है मैथ्स के लिए। तो आईपी मैट इंदौर के लिए इफ़ आई वुड से कि अर्थमेटिक, स्टार्ट फ्रॉम अर्थमेटिक, उसके बेसिक्स बना लो। जो उसके बेसिक्स होते हैं दे विल हेल्प यू इन फर्दर मॉड्यूल सच एज एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ये सब। सो स्टार्ट फ्रॉम अर्थमेटिक, बिल्ड योर बेसिक्स इन दैट, एंड देन गो ऑन टू टॉपिक्स सच एज एल्जेब्रा। एल्जेब्रा काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आईपी मैट इंदौर में, उस पर बहुत फोकस करना है, एंड ऑल्सो मॉडर्न मैथ। सो फोकस ऑन दीज 2 टॉपिक्स मोर rather than arithmetic, if I refer to IP MAT Indore specifically. Okay, and then how about English? Yes, so verbal ability, the more you read, the better it will be for you. So I remember पूरे 2 साल में मैंने I have read many books, I have read multiple newspapers. So if you are starting, focus on reading newspapers such as Times of India, Hindu, and then go on to bigger and complex passages such as Aeon Essays, and also रीड अ लॉट ऑफ डाइवर्स सेट ऑफ पैसेजेस। मतलब एक फिलोसफी का, एक हिस्ट्री का, एक मॉडर्न टॉपिक्स का, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री का। तो अलग अलग जब पढ़ोगे ना तो आपको बेटर उधर होगा प्रिपरेशन, क्योंकि किसी को कुछ टॉपिक्स अच्छे नहीं लगते हैं, इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं, तो रीड अ डाइवर्स सेट ऑफ टॉपिक्स। Oh, that's wonderful advice Ayush has given us. Now, Ayush, one last piece of advice which I would want you to give it to your fellow aspirant in your own Gen Z style कि भाई करना क्या है, कैसे करना चाहिए 2 साल, जिंदगी के 2 साल कैसे बिताने चाहिए, एंड अगर स्ट्रेस आए तो क्या करें, कभी छोड़ने का मन करे, छोड़ो, प्रिपरेशन नहीं करनी, तब अपन क्या करें? सो व्हाट एडवाइस, प्रो टिप्स यू वुड लाइक टू गिव इट टू द फेलो एस्पिरेंट्स जो तुम्हारे जूनियर बनने वाले हैं? देखो, एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ है नहीं। ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो तुम्हें ही नुकसान होगा। जितना चिल वे से और एक स्ट्रैटेजी अप्रोच से कर सकते हो एग्ज़ाम्स, उतना बेटर होगा। ज़्यादा लोड लेने से तुम्हारी परफॉर्मेंस ही हिंडर होगी।
एंड अगर मैं बोलूँ मेरे 2 साल की जर्नी काफ़ी एग्जॉस्टिंग और टायरिंग थी, बट इट वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। काफ़ी सीखने को मिला और काफ़ी मैं ग्रो किया। अगर मुझे ये 2 साल वापस रिपीट करने हो, मैं वापस करूँगा, क्योंकि इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी। तो यू हैव टू इन्जॉय दिस जर्नी। जितना तुम जर्नी को इन्जॉय कर पाओगे उतना मेमोरेबल बनेगी और उतना तुम्हें अच्छा आउटपुट मिलेगा। आई थिंक आयुष ने एक बहुत ही फिलोसफिकल बात की और जेन्युइन बात है कि जर्नी है, उस जर्नी को एंजॉय करना इंपॉर्टेंट है। बाकी तो यू नो एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर वेटिंग फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। और अब मेहनत करो, रात को जब आईने में अपने आप को देखो तो एक अच्छी फीलिंग आनी चाहिए कि यस वी हैव वर्कड वेरी हार्ड। गिल्ट नहीं होना चाहिए कि अपन ने किसी प्रकार की मक्कारी करी है। आई थिंक दैट्स व्हाट यू सेइंग आयुष। यस, करेक्ट। सो भाई लोग मेहनत करो, स्टे फोकस्ड, आई मीन स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, स्टे फोकस्ड। जिंदगी अपना रास्ता अपना बना लेगी। मेहनत का एक जो आंसर होता है ना, हमेशा सफलता ही होती है। अब चिंता नहीं करिए इस बात के लिए। विद दिस वी एंड द शो। आयुष, थैंक यू सो मच, गॉड थैंक यू ब्लेस सो मच यू। सर।